نہیں دیکھے گا، اور جو کلام پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے گا، کیونکہ کلام پر عمل کرنا ہی ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ آج کا ٹاپک ہے دعا روزے کے بنیادی اصول۔ روزہ ہماری زندگیوں میں جس طرح سے ہم نے پہلے سیکھا کہ کامل برکت کو لے کے آتا ہے۔ کس کو لے کے آتا ہے؟ کامل برکت کو لے کے آتا ہے۔ وہ برکت جو ہمیں روزہ یونا کو خدا نے کلام دیا کہ نینوا میں جا اور ان سے اس بات کے لیے اعلان کر دے کہ نینوا 40 دن میں کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا، اور اس لیے ان لوگوں کو بتا کہ روزہ رکھیں۔ کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں۔ تو بادشاہ نے اپنی شاہی پوشاک اتار دی اور اپنے تمام تر لوگوں کو یہاں تک کہ جانوروں تک کو راکھ اور خاک میں بٹھا دیا، اور کچھ انہوں نے 3 دن تک نہ کھایا، نہ پیا، نہ کھایا، اور وہ روزہ رکھنے سے خدا نے 1,20,000 تقریباً وہ لوگ جو موت کے منہ میں تھے، جو موت کے منہ میں تھے، جو فنا اور برباد ہونے والے تھے، ان کو خدا نے اس موت کے منہ سے نکال لیا اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیشہ کی زندگی کی برکت یہی وہ برکت ہے جو ان کی کامل برکت ہے۔ جس طرح سے کرنچیس کی کلیسیا میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ پالوس کہتا ہے کہ میں جب آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ مسیح کی کامل برکت کیا ہے؟ مسیح کی کامل برکت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ زندگی دینے آیا، اور کثرت کی زندگی۔ ہاللیلویہ۔ ہم جس طرح سے خدا کے کلام مقدس میں سے روزے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے آج ہم دعا روزے کے متعلق اپنی زندگیوں کے لیے سیکھیں گے، اور اس بات کے لیے ہمیں افسیوں 2 باب اور اس کی 12 آیت مقدسہ کو آج تلاوت کرنا ہے۔ جی عمران صاحب۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام سے، اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اگلا زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ یہ ہمارے وہ کام تھے جن سے ہم ناواقف تھے، ان وعدوں سے ہم ناواقف تھے، ان عہدوں سے ہم ناواقف تھے، اور ہم اسرائیل کی برکت میں بھی شامل نہ تھے۔ تو ہمیں مسیح کے وسیلہ سے خدا نے ان سارے وعدوں میں اور ان ساری برکتوں میں شامل کر لیا، جبکہ یسوع مسیح نے جب ہم اپنی زندگیوں میں جن باتوں کے لیے ہم واقف نہیں ہیں، جن باتوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس بات کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، کچھ آج بھی مسیحی ایسے ہیں جنہیں دعا کے متعلق نہیں علم، جو دعا کرنا نہیں جانتے، جنہیں دعا کے پیٹرنز کو پتہ نہیں ہے کہ بائبل کے مطابق ہم نے کس وقت میں کس طرح سے دعا میں ٹھہرنا ہے۔ شاگرد اکثر یسوع مسیح جایا کرتے تھے دعا کرنے، تو پیچھے شاگرد سو جاتے تھے۔ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دعا نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم نے یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ضروری کرنی ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ آزمائش جب انسان پر آتی ہے تو وہ کسی دکھ، مصیبت
बीमारी की सूरत में, तंगदस्ती की सूरत में, हादसात की सूरत में वो हमारे ऊपर आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन आजमाइश से बचने का रास्ता खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि हमें दुआ करना है। हम दुआ से उस आजमाइश में से बच सकते हैं। खुदा ने अपने कलाम में इब्राहिम से इस बात के लिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्राहिम ईमान लाया और रास्तबाज ठहरा। वो ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरा और खुदा ने उसे अपने साथ चलने का हुक्म दिया कि मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा, रास्तबाजी की राह पर चल। और उस रास्तबाजी पे चलने के साथ साथ इब्राहिम ईमान में बढ़ता गया, मजबूत होता गया, कि जिसमें आप देखते हैं कि लूत सदूम अमूरा में था और खुदा उस सदूम अमूरा को तबाह करना चाहता था, इसलिए कि वहां पर बदी बहुत बढ़ गई थी। तो खुदा ने इब्राहिम से इस बात का इजहार किया कि क्या मैं सदूम अमूरा को तबाह करने जा रहा हूं। तो इब्राहिम से खुदा ने मशवरा लिया और इब्राहिम ने खुदा से बात करना चाहिए और उससे कहा कि अगरचे तू जानता है कि वहां पर तेरा बंदा रास्तबाज लूत मौजूद है, जिस चीज पे खुदा ने इब्राहिम को उस बात के लिए अलर्ट किया, इब्राहिम ने कहा कि खुदावंद अगर वहां पर 50 ईमानदार हुए तो तब भी तू उस मुल्क को तबाह कर देगा। खुदा ने कहा नहीं। करते करते 45 से 40 और 30 से 20 और 20 से 10 पर आगे, और खुदा ने कहा कि अगर इब्राहिम वहां पर 10 लोग भी ईमानदार रास्तबाज होंगे तो मैं उस मुल्क को तबाह नहीं करूंगा। असल में हम आज ये बात सीख रहे हैं कि हमें ईमान से दुआ करने की जरूरत है, ईमान से खुदा के सामने जाने की जरूरत है, ईमान से हम उस खुदा को अपने काम के लिए, अपनी बातों के लिए एग्री कर सके और उस बात के लिए क्या रखें, ईमान रखें कि हमने जो खुदा से बात की है खुदा वैसा ही हमारी जिंदगी के लिए करेगा। वो कुदरत वाला खुदा है, वो करना चाहता है, वो ईमानदार की जिंदगी पर निगाह रखता है, वो उसके बातों पर कान लगाए रखता है, वो उसकी दुआओं को सुनता है। अगरचे वहां पर 10 रास्तबाज नहीं मिले, 10 रास्तबाज नहीं मिले, तो खुदा ने फिर भी अपने एक रास्तबाज बंदा की खातिर अपने फरिश्तों को वहां पर भेजा और उन फरिश्तों ने उसे वहां से निकाला। वो साथ में उसकी बेटियां भी आई, उसकी बीवी भी आई, लेकिन बीवी फिर पलट गई और बेटियां उसके साथ निकल गई। अगरचे हम आज अपने खानदान को बचाना चाहते हैं तो हमें दुआ रोजे की जरूरत है। हम दुआ रोजे के वसीला से अपने खानदान को, अपने घराने को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अगरचे हम रास्तबाज खुदा की नजर में तब होते हैं जब हम रास्तबाजी के काम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें एक दुआ के ताल्लुक से बात मिलती है कि हम खुदावंद की हजूरी में दुआ में खुदा हमें कलीसिया को दुआ के लिए बुलाता है। कलीसिया को खुदा किसके लिए बुलाता है? दुआ के लिए बुलाता है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना। दुआ वो चाबी है जिससे आसमान खुलता है और हमें उस दुआ के वसीला से कुव्वत मिलती है। यहाँ पर दूसरे तवारीख में 7 बाब और उसकी 14 आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे। दूसरा तवारीख और 7 बाब और उसकी 14 आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में इस बात को रकम किया गया है। हालेलुया।
ये दुआ के ताल्लुक से खुदा की बुलाहट है हमारी जिंदगियों के लिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग हालेलुया। जो मेरे कहलाते हैं हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें यस, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, यस, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जैसा कि भाई साहब ने पढ़ा कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा। यहाँ पर इस बात को हम जब सीखते हैं तो खुदा हमसे कलीसिया से इस बात के लिए कि तब अगर मेरे लोग, खुदा के लोग कौन है? कलीसिया, मुकद्दसीन, खुदा की हजूरी में ईमानदार लोग, वो लोग जो खुदा से डरते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। खाकसारी एक रोजे की अलामत है। रोजे में जब हम ठहरते हैं तो हम खाकसार बन जाते हैं, हम अपने आप को झुका देते हैं, हम खुदा की हजूरी में अपनी जिंदगी में उस पाकीज़गी को रखते हैं कि ताकि हम किसी से बुरा सलूक, बुरी बात ना कर सके। हमारे अंदर वो रोजे की अलामत ये कहती है कि हम खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक उसके नाम को जलाल दे और दुआ रोजे में ठहरे। तो यहाँ पर इस बात को हम सीखते हैं कि खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो। खुदा की दीदार के तालिब हम तब बनते हैं जब मत्ती की इंजील और उसके 5 बाब में जब हम मुबारकबादियों में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पाक दिल खुदा को मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और हम जो खुदावंत में ब्लेस्ड लोग हैं, खुदा के मुकद्दस लोग हैं, वो जब खुदावंत की हजूरी में खाकसारी में दुआ रोजे में ठहरते हैं, देखते हैं कि खुदा आज तो मुझे अपने दीदार का जलवा करवा, तो खुदा अपने लोगों पर अपनी छवि को जाहिर कर देता है। वो उनसे आकर मिल लेता है। वो किसी भी तरह से वो ख्वाब रोया में आकर उनसे बात करता है, वो कलाम करता है। तो वो लोग जो खुदा की पाकीज़गी में, ताबेदारी में, खाकसारी में, फर्मा बरदारी में खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा उनको अपने दीदार से जलवागर फरमाता है। खुदा का नूर, उसका जलाल जब हमारी जिंदगियों पर आ ठहरता है तो फिर हमारी जिंदगियों से भी खुदा ही नजर आना चाहिए, ताकि खुदा के लोग जो खाकसार बनकर दुआ करते हैं और मेरे दीदार के तालिब होते हैं और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह क्या करूंगा? माफ करूंगा। खुदा कलीसिया को दुआ के लिए बुला रहा है। यहाँ पर खुदा बुला रहा है। ये बुलाहट है और ये कोई पहली बुलाहट नहीं है। खुदा सालों से, सदियों से इंसान को बुला रहा है। बातों के लिए हमें आज दुआ रोजे की जरूरत है। वो बातें हमें अपनी जिंदगी में कलेक्ट करनी है कि खुदा चाहता है कि हम ये रोजों के आयाम में अगरचे हम रोजा रखते हैं तो हम खुदा की हजूरी में दुआ भी खुदा की हजूरी में करें। ये नहीं कि रोजा रख के तो हम सो जाएं और सो के उठे तो खाना खाएं तो हमारा रोजा हो गया। ऐसे नहीं। लोग अक्सर रोजे को टाइम पास करवाते हैं, जबकि रोजे में हमने यशाया 58 में पढ़ा था कि क्या ये वो रोजा है जो मैं चाहता हूँ कि जिससे जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए, जुए के बंधन खोले जाए
और वो रोजा जो सा गरीब मस्कीन के लिए रखा जाता है, जो कैदियों के लिए रखा जाता है, आज हम यहाँ पर आजाद हैं, आजाद मुल्क में हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुस्लिम ममालिक में आपको पता है कि इस वक्त लोग कई ऐसे हैं जो खुदा के कलाम की खातिर और यीशु मसीह के नाम की खातिर 295 के ऑर्डिनेंस में, जेल खानों में, कैद खानों में बंद हैं। और पालूस रसूल अब्रानियों की कलीसिया के खत में कहता है कि उनके लिए बिला नागा क्या करो, दुआ करो। इस तरह से दुआ करो कि जिस तरह तुम उनके साथ खुद कैद में हो। तो जब हम रोजा रखें तो हमें कैदियों के लिए रिहाई का ऐलान करना है, उनकी आजादी का ऐलान करना है। यीशु मसीह यशायाह 61 में क्या कहता है, मैं इसलिए आया कि कैदी रिहाई पाए, अंधे बेनाई पाए, लंगड़े चले, मुर्दे जिंदा हो, कोढ़ी पाक साफ हो। तो ये वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी बात सिखाई है कि ताकि हम भी वैसा ही अमल खुदावंद को करके दिखाएं और अपनी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल दें। रोमियो 8 बाब और उसकी 26 आयत मुकद्दसा को। हालेलुया। दुआ में हमें खुदा के पाक रूह कुद्दूस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना नहीं आता, रूह हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भरती है कि वो दुआ जो खुदा को पसंद है। हालेलुया। 26 आयत में यूं लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि हमें दुआ करना नहीं आता। जिस तौर पर खुदा चाहता है कि हम दुआ करें, हमें उस तौर पर दुआ करना नहीं आता। लेकिन खुदा ने हमारे लिए ऐसा इंतजाम, इलाही इंतजाम, कौन सा इंतजाम? इलाही इंतजाम, वो आसमान से भेजा गया हमारे लिए डिवाइन हेल्पर, वो हमारा मददगार हमें दिया गया है ताकि हम उसके साथ मिलकर क्या करें? दुआ करें, शिफायत करें, आहो नाला करें, खुदा उनकी हजूरी में निर्याउजारी करें। किन के लिए? उन गुनहगार लोगों के लिए जो अभी तक नजात नहीं पा सके, उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगियों में अभी तक स्टिल गुनाह है और वो गुनाह की हालत में अपने घरों और खानदानों में मौजूद हैं। हमें उनके लिए शिफायत करने की, दुआ करने की जरूरत है। और यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमें मदद करता है। वो जो लोग रूहानी तौर पर कमजोर हैं, जो रूह में कमजोर हैं, जिन्हें दुआ करना नहीं आता, जो दुआ करते करते सोते हैं, वासियां अपने अंदर खुमारी रखते हैं, उनसे आंखें भी नहीं सही खुल रही होती दुआ में, तो बस ऐसे ही घुटने भी नहीं टेकते, तो बस ऐसे ही अल्लाह गर्जी में 2-4 अल्फाज बोले और दुआ पैक। वो दुआ कैंसल है। जिस दुआ में आप एक्टिव नहीं है, जिस दुआ में आप पूरी समझ के साथ नहीं है, जिस दुआ में कलाम नहीं है, जिस कलाम के वसीला से आपको और आपके खानदान को बचाया जा रहा है, अगरचे उन दुआओं में उस कलाम को हम बोलते नहीं हैं, किसी की नजात के लिए, किसी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसी के बंधनों को हम तोड़ते नहीं, किसी की बीमारी के लिए हम शिफा नहीं मांगते, तो हमारी दुआओं का कोई फायदा नहीं, कोई मकसद ही नहीं कि हम सिर्फ एक बात को करके तो खुदा की हजूरी में दुआ को बंद करते। रूह हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भरता है, ऐसी शिफायत करता है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। और खुदा चाहता है कि हम ऐसी दुआ करें
खुदा की हजूरी में कुछ टाइम हम चल फिर कर दुआ करें, कुछ टाइम हम घुटने टेक कर दुआ करें, कुछ टाइम हम खुदा की हजूरी में ऊंधे मुंह होकर दुआ करें और खुदा की हजूरी में उस कलाम को लेकर कि हम ऐ खुदा अपने घराने को बचाना चाहते हैं, उसके लिए नजात चाहते हैं, उसके लिए बरकत चाहते हैं, तेरा आसमान हमारी जिंदगियों पर ऐ खुदा खुल जाए और हमारे खानदान बच जाए। क्या रूह कुदुस हमें सिर्फ ऐसे ही बेमकसद दिया गया है कि हमें उससे काम भी लेना है? हाँ? काम तब हम लेंगे जब हम उसको अपने आप को पूरे ताबे उसके कर देंगे। हाँ? आज लोगों ने रूह कुदुस को अपने ताबे किया हुआ है, बाज लोगों ने रूह कुदुस को अपने पीछे रखा हुआ है कि जिधर मैं जाऊंगा साथ मेरे चलो। ऐसे नहीं खुदा का रूह। ताकिया में पालूस को जाने से रूह कुदुस ने रोक दिया कि तूने वहां पर जाके कलाम नहीं सुनाना, तो उसने उसकी ताबेदारी की। आज जहां पर हम खड़े हैं, हमारी अपनी पोजीशन है और हम अपनी मर्जी पर चल रहे हैं और रूह कुदुस को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर हमारे साथ अगर रूह कुदुस नहीं है तो फिर हमारे साथ खुदा भी नहीं है। हाँ? अमाल 5 बाब में हाँ? इस बात को रकम किया गया। हाँ? अननिया और सफीरा ने रूह कुदुस की बात को फॉलो नहीं किया, तो पतरस ने क्या कहा कि तुमने मुझसे नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो हमारी जिंदगियों पर आज इस बात को ओपन होना चाहिए कि हम अगर खुदा का रूह रखते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में झूठ, फरेब, नापाकी, नाराजगी, बदी नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम रूह कुदुस के ताबे हैं और रूह कुदुस को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। खुदा इस कलाम की वसीला से हम सबको बरकत दे।